Assalamu alaikum. Today we have 10th lecture for Business Finance MGT 232, and we are going to have a brief review of bond valuation last lecture, and we were studying about bond valuation, that how we are going to invest in the bonds and what yield or return we are going to earn on the bonds. Let's have a brief overview of the last lecture. First we studied about the bond valuation, that is what is the value of a bond. How we are going to invest our amount in bonds, and what amount of return we get, and how we find out the value or the price of that investment or the bond. What we studied was that finding out value of any asset is finding out the present value of future cash flows expected from it. That means we are going to find out the present value of future cash flows expected from that certain amount of investment. So जो भी हम investment bonds के अंदर करेंगे, उनकी present value अगर आज find out की जाए, what value that would be. That was about bond valuation. Then we find out the formula, that was VB is equals to INT 1 plus RD power minus N whole over RD plus maturity value into 1 plus RD power minus N. That was the formula for bond valuation. Then we look at two different kinds of bonds. The first one was zero coupon bond, and second one was coupon bond. And we look at the valuation of those similar to kind of bonds. The zero coupon bond is similar to the coupon bond, except with the difference of interest payments. In zero coupon bond, we don't have any interest payment because the interest rate is 0%. And in case of coupon bonds, we have a certain amount of interest payments, which are fixed interest payment. That is one of the characteristics of your bonds. For zero coupon bond, the formula is VB is equals to maturity value into 1 plus RD power minus N. For coupon bond valuation, that is the similar formula for the bond valuation, simple bond valuation. That is value for bond is equals to INT into 1 minus 1 plus RD power minus N whole over RD plus maturity value into 1 plus RD power minus N. In case of semi-annual compounding, what we do is we divide the value of INT and RD by 2, and we multiply the value of N by 2. What is the formula for semi-annual compounding? That would be VB is equals to INT divided by 2 into 1 minus 1 plus RD divided by 2 whole power minus 2N whole divided by RD divided by 2 plus maturity value into 1 plus RD divided by 2 whole power minus 2N. In case of quarterly, the 2 की जगह 4 आ जाएगा. In case of monthly, that would be 12. In case of daily, that will be 365. But in case of bonds, most of the time the bonds are with the annual coupon interest payments and semi-annual coupon interest payment, or there are rare cases of quarterly payments of interest. Then we studied about the bond yield. We do have to look at the steps while finding out the bond valuation. The first step is to write down the data. What is the data given to us? The coupon interest rate, we must have a par value, we must have a number of years till maturity, and we must have a market rate of return, that is RD. First we have to find out the value of INT. INT is your interest payment. That is find out INT is equals to par value into coupon interest rate. That is, let's suppose if we have a par value of 1000 and your interest rate is 10%, that means 1000 into 10% is rupees 100. 100 is your value of INT. That is step 1. In step 2, we have to write down the formula of bond valuation, whatever formula we are using for either for zero coupon bond or simple coupon bond or semi-annual compounding bond valuation. So we write down the formula and calculate using the calculator or your spreadsheet. Then we have bond yield. Whenever we talk about any kind of investment, we have to talk. We do consider profit and return. Whatever we invest, we want the return on that investment. In case of bonds, whatever you invest is giving you return in the form of interest payment. In case, let's suppose the example of corporate bonds, firms are going to issue corporate bonds. They are going to give you bonds. You as an investor is going to invest certain amount in those bonds. Whatever you invest is your funds and your investment to the bondholders, to the
corporation, the borrowers. Those corporations are going to give you the bond. Bond is simply your simple contract or simple piece of paper. That amount, you'll have the bond with you. You will invest certain amount. That certain amount will earn you a return. The return would be in the form of interest payment. That interest payment is normally INT, which is given to you on with a fixed interest rate and fixed amount of payment आपको मिलती है. लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है. जो एक्स्ट्रा आप करते हो वो ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलेगी एट द एंड. जब ईयर खत्म हो जाएगा, मेच्योरिटी हो जाएगी बॉन्ड की, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ आपकी ओरिजिनल पार वैल्यू जो कि आपने बॉन्ड्स खरीदते वक्त की थी वो बॉन्ड्स की मेच्योरिटी वैल्यू भी मिल जाएगी और बॉन्ड्स वापस कर दोगे. ये जो इंटरेस्ट पेमेंट की बात करते हैं दैट इज द इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर आपको रिटर्न आ रहा होता है. एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न हमें पता होना चाहिए, दैट इज द यील्ड. वो सर्टन आपकी यील्ड होती है कि वो जो रेट ऑफ रिटर्न, ये परसेंटेज रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको हम यील्ड कह देते हैं. एंड इन केस ऑफ बॉन्ड दैट यील्ड इज द इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स. द रिटर्न यू अर्न विद द इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इज योर बॉन्ड यील्ड. Okay, in the last lecture we studied bond yield. Bond yield was two types of yields are there for the bonds. The first one is yield to maturity and another one is yield to call. In case of yield to maturity, it is the whenever you have certain amount of investment in bonds, and if you held those bonds till maturity, the yield you will earn or the return you will earn on those on that specific investment would be yield to maturity. So जब भी हम investment करते हैं तो first thing जो आती है वो ये है कि जी first investment or the amount of investment you are investing in the bonds and the amount of return or the rate or the percentage return you are earning if the bonds are held till maturity. तो आपने bonds में investment की और अगर आप ये करते हैं कि bonds अपने पास रखते हैं till maturity, तो that would be your bond till that will be the yield till maturity. इस पे जो return आएगा, होता ये है कि क्योंकि हमने कहा कि value for bond find out करते हैं तो present value future cash flows, expected cash flows, तो जो expected cash flows हैं उन expected cash flows की आज हम present value find out करते हैं with a certain amount of return. तो वो जो certain rate of return है, percentage return है, उसको हम yield कह देते हैं. और bonds अगर till maturity, assumption ये है कि bonds till maturity रखें तो it's certain amount of investment के ऊपर इतने years तक कितना return आएगा, that is the yield to maturity. When we talk about yield to call, that is in the case of bonds when which are callable. The bonds when are callable, that means you are going to find out the yield or the return if the bonds held till call. तो उसके ऊपर YTM भी find out की जा सकते हैं, पर ज्यादातर YTC find out किया जाता है कि let's suppose अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं ऐसे bonds में, कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, तीन है और तीनों में मैंने इन्वेस्ट करना है. तीनों की तीनों कंपनी जो एक 10 साल में, दूसरी भी 10 साल में, तीसरी 11 साल बाद अपने बॉन्ड्स को कॉल करती है. तो इन सब में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो इनमें से जो रेट ऑफ रिटर्न मुझे आएगा वो कितना होगा सिर्फ अगर मैं बॉन्ड्स टिल कॉल तक अपने पास रखूं. अगर मेच्योरिटी लेट्स सपोज 20 ईयर्स थी और अपने बॉन्ड्स कॉल करने हैं तो बॉन्ड्स 10 ईयर्स के अंदर कॉल हो रहे हैं. लेट्स सपोज कॉर्पोरेशन 10 ईयर्स के अंदर कॉल करी एक कंपनी में, दूसरे कंपनी में भी 10 ईयर्स तक, तीसरी कंपनी में 11 साल बाद बॉन्ड्स कॉलेबल है. आप इन तीनों का कंपेरिजन करो किसमें बेटर इन्वेस्टमेंट होगी. फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट कंपनी बॉन्ड ए में इन्वेस्टमेंट की, बॉन्ड बी में, बॉन्ड सी में, तीनों के फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज देखेंगे जी इतना परसेंटेज कूपन इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, इतना रेट ऑफ रिटर्न है, इतने सालों तक हमें 10 ईयर्स तक. अगर बॉन्ड्स टिल मेच्योरिटी तक भी फाइंड हो सकते हैं, अगर बॉन्ड्स कॉलेबल है और हम अज्यूम ये करते हैं कि बॉन्ड्स 10 साल के अंदर अंदर या 10 साल तक कॉल हो जाएंगे तो मेरे पास कितना रिटर्न आएगा या कितना यील्ड परसेंटेज यील्ड आती है. अब ये चीज की कितना परसेंटेज यील्ड आएगी ये हम इफ बॉन्ड्स हेल्ड टिल मेच्योरिटी टिल कॉल, तो हम जो यील्ड या रिटर्न फाइंड आउट करते हैं दैट इज योर यील्ड टू कॉल. सो इफ द बॉन्ड्स आर हेल्ड टिल कॉल, they are the return or the yield you earn on that certain investment in the bonds is your yield to call or YTC. एक चीज और के जब भी हम yield to call या yield to maturity की बात करते हैं तो ये चीज बड़ी जरूरी है ये कंसीडर करना कि कितने नंबर ऑफ इयर्स हम कंसीडर कर रहे हैं. जितने भी नंबर ऑफ इयर्स अगर yield to maturity है तो नंबर ऑफ इयर्स विल बी योर नंबर ऑफ इयर्स टिल maturity. If we talk about yield to call, that means number of years till called. तो जब तक कॉल करेंगे तब तक के नंबर ऑफ इयर्स 10 साल, मेच्योरिटी 20 इयर्स की, तो YTM फाइंड आउट करते हैं आपके नंबर ऑफ इयर्स 20 हो जाएंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टर्स यूज दिस टू कंसीडर डिफरेंट बॉन्ड्स. मैंने कहा कंपनी ए बी सी, एक भी 10 साल कॉलेबल, दूसरी भी 10 साल, तीसरी भी. ये यील्ड आती एक की आती 4%, दूसरे की आती 5%, तीसरे की आती 6%. तो यू कंसीडर द बॉन्ड विद 6% इंटरेस्ट रेट या 6% यील्ड और द रिटर्न, क्योंकि वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा यील्ड या रिटर्न दे रही है. और आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज को भी देखने के लिए भी आपकी बॉन्ड यील्ड यूज की जाती है. नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द यील्ड टू मैच्योरिटी. Okay, let's look at this yield to maturity. The formula for finding out yield to maturity is, and we have different steps for finding out the yield to maturity. The formula is
value of a bond is equals to INT. We are going to use the same formula in the whole chapter of bond valuation with the slight changes in it. We have 1 minus 1 plus YTM whole power minus n whole over YTM. अब देखें वो जो हम required rate of return फाइंड आउट करते हैं RD, that is your required rate of return, जो कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है. मार्केट में किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करो तो कितना रिटर्न आएगा. लेकिन जब हम यील्ड की बात करते हैं, इस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी यील्ड आएगी, अगर ये सी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड रखे जाए, इतनी इन्वेस्टमेंट की जाए तो कितना रिटर्न आएगा एक बॉन्ड के ऊपर. तो हम बॉन्ड्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जगह YTM की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज द यील्ड और द रिटर्न फॉर दिस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट. So VB is equals to INT into 1 minus 1 plus YTM whole power minus n whole over YTM plus maturity value into 1 plus YTM power minus n. Where VB is equals to value of a bond. This INT is your again your interest payment, that will be equal to par value into coupon interest rate. This is your interest payment. This YTM is your yield to call, yield to maturity. This MV is your maturity value or par value, या इसको जो भी आप इसको कहते हैं, it's your maturity value or par value और face value, जो भी आप इसको कहें. And this n बहुत important है यहाँ पे. This n is your number of years to maturity, या number of years till maturity. So in case of YTM, we are taking number of years till maturity. So this is your formula for YTM. There are different steps included. The first step is to find out, step 1 is to find out INT. Step 2 is the formula you are going to use, जैसे कि हम bond valuation में करते थे. Step 3 is interpolation. हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके अंदर आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी. Step 4 is hit and trial method. Step 5 is equals to finding YTM. And step 6 is recheck. We have to recheck our answers, that answer whether it is right or not. So let's look at another slide, that is yield to maturity, जिसके अंदर हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट करेंगे using this YTM. So company issued a bond with a par value of rupees 1000 at a coupon interest rate of 10% for 14 years. That means company is going to issue a bond with a par value of rupees 1000. आपकी par value कितनी है? 1000 at a coupon interest rate of 10% for 14 years. If the value of a bond is rupees 1494.93, find the yield to be earned by the investor on the bond if held till maturity. अब क्या हमेशा जितने भी आपके चाहे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्वेश्चन हो, बॉन्ड वैल्यूएशन हो, शेयर वैल्यूएशन, या आगे हम जो भी चीजें एनालिसिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीड क्वेश्चन थॉरोली. बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन फाइंड आउट द डाटा फ्रॉम द क्वेश्चन. द फर्स्ट थिंग इज कंपनी इश्यूड अ बॉन्ड विद par value of rupees 1000. Now we know that the par value is 1000. So let's make a data for this. We have par value is equals to 1000 at a coupon interest rate of 10%. That means we have coupon interest rate of 10% for 14 years. That means n is equals to 14 years. If the value of a bond is rupees 1494.93, अब क्या दिया हुआ है हमें? Value of a bond दे दिया already, 1494.93. Find the yield to be earned by the investor on the bond if held till maturity. तो हमने yield अगर investor के लिए जो उसकी क्या yield क्या earn करेगा investor if bonds are held till maturity. So that means it would be YTM. क्या हमें yield find out करनी है if bonds are held till maturity. Now step 1 is finding INT.
INT फाइंड आउट करने का तरीका क्या? INT इज इक्वल्स टू पावर वैल्यू इनटू कूपन इंटरेस्ट रेट. So your par value we know is 1000, your coupon interest rate is 10%, so 1000 into 10% is equal to 100 rupees. So the answer would be 100 rupees. Now we have step 2. Your step 2 is, now don't forget to keep a paper, a pen and a calculator with you because it is very important to have 3 things with you when you are studying business finance. तो अगर नहीं भी है तो अभी पकड़ लें ताकि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें and you must know कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है. So step 2. So your step 2 is VB is equals to, the formula we are going to use in this question is, using formula is your step 2. VB is equals to INT 1 minus 1 plus YTM whole power minus N whole over YTM plus maturity value into 1 plus YTM whole power minus N. This is the formula you are going to use for your yield to maturity. Let's look at another step for finding out, specifically finding out and putting in the value. The step 3 is, step 3 is your interpolation. Now it is very important to look at the formula of interpolation and see कि किस तरीके से value find out होती है. एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी बुक को देखें, कोई भी कहीं पे भी अगर आपको सिखाया जाए कि YTM या YTC किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो वो उसका तरीका आपको हमेशा कहा जाएगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड और यूज स्प्रेडशीट या फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज किया जाए. बट व्हेन एवर यू आर डूइंग इट मैनुअली, तो फिर किस तरीके से करना है या उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है तो किस तरीके से करना है. तो पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जब भी आप यूज करते हैं अपनी YTM की वैल्यू, तो YTM की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू डू इज, क्योंकि आपको वैल्यू फॉर बॉन्ड पता, आपको INT पता, आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता, आपको YTM नहीं पता. YTM के लिए आप क्या करते हो कि डिफरेंट परसेंटेज डालते हो. जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा आपके सामने, वो फॉर्मूला में आप YTM की डिफरेंट वैल्यूज डालते हो और तब तक डालते रहते हो जब तक आपके पास ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड नहीं आ जाती. क्योंकि अगर आप अपना क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड दी हुई है, दैट इज 1493.94 और 94.93. वो जो वैल्यू दी हुई है, आपको वैल्यू फॉर बॉन्ड पता है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता है, आपको INT पता है, लेकिन आपको YTM नहीं पता, आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी पता है. YTM फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि उस फॉर्मूला के अंदर बाकी सारी वैल्यूज डालें, फिर उसके अंदर डिफरेंट परसेंटेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 1% टू 2% टू 3% टिल 100%, तब तक आप परसेंटेज डालते रहोगे जब तक इस साइड का आंसर एग्जैक्टली आपकी उस वैल्यू ऑफ बॉन्ड की इक्वल नहीं आ जाता जो कि क्वेश्चन में गिवन है. सो तब तक आप YTM की वैल्यूज डिफरेंट डालते रहोगे, कैलकुलेट करते रहोगे जब तक वैल्यू फॉर बॉन्ड नहीं आती. नाउ दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस कि आप डिफरेंट YTM की वैल्यूज डालो और उसके बाद उसके अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो. तो आप क्या करते हो, एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है. आई डोंट नो मोस्ट ऑफ द टीचर्स टेल दिस और नॉट, लेकिन मेरा ये है कि इस शॉर्टकट फॉर्मूला को जितने ज्यादा स्टूडेंट्स को पता चले अच्छा है. ये एवेल्युएट क्योंकि नॉट फॉर्मली किसी बुक में नहीं शायद आपको मिले, नॉर्मली इस फॉर्मली नहीं किया गया हुआ, वैसे ही किसी ने फाइंड आउट किया हुआ था. तो वो अगर तरीका देखा जाए और इट डू गिव नियरेस्ट आंसर. तो इंटरपोलेशन या शॉर्टकट फॉर्मूला से आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, आपको नियरेस्ट आंसर मिलता है. देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप्स, तो फिर आप जो नेक्स्ट स्टेप्स करते हो उन स्टेप्स से फिर आपको आंसर मिलता है. नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग. वी आर गोइंग टू डू इंटरपोलेशन. फॉर इंटरपोलेशन इट इज द फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला जिसमें हम यूज करेंगे INT प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड होल ओवर n. इसमें जो n है दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स टू कॉल, होल डिवाइडेड बाय 0.4 इनटू मेच्योरिटी वैल्यू प्लस 0.6 इनटू वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आस्क दिस क्वेश्चन कि 0.4 और 0.6 कहाँ है या ये क्यों है, ये क्या फॉर्मूले के अंदर है या ये वैल्यू चेंज होगी. कोई चेंज नहीं, एग्जैक्ट ऐसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे. 0.4 और 0.6 हमने क्यों कंसीडर किया, जब भी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होती है, अगर हम कहें उसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स की पूरी इक्वल प्रोबेबिलिटी है. तो अगर 0.4 प्लस 0.6 करें तो दैट इज इक्वल टू 1.
इसके अंदर फॉर्मूला एग्जैक्ट आंसर आने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इवेल्युएट किया गया, अकॉर्डिंग टू दैट अगर 40% ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू को ऐड किया जाए 60% ऑफ वैल्यू फॉर बॉन्ड, दैट मीन्स 0.4 इंटू मेच्योरिटी वैल्यू प्लस 0.6 इंटू वैल्यू फॉर बॉन्ड करें, तो फिर हमारे पास कितना हमारा जो आंसर है ऑफ दिस YTM वो नियरेस्ट वैल्यू पे आ जाता है। इसलिए हम इसको 0.4 और 0.6 इसी तरह कंसिडर करते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला है। Now let's put in the values जो कि हमने अभी डाटा से पिछली स्लाइड में फाइंड आउट की थी। तो the first thing is your INT is 100. The maturity value we have in the question is 1000. The value of a bond we have is 1494.93 whole divided by 14, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ईयर्स टिल मेच्योरिटी कितने 14 ईयर्स तक के लिए आपका बॉन्ड इशू किया गया। होल डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 1000। चले जी इसका आंसर फाइंड आउट करें अपने स्टार्ट यूजिंग योर कैलकुलेटर, और वैल्यूज इसके अंदर हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं जी इसकी वैल्यू क्या होगी। जस्ट राइट डाउन द वैल्यू यू फाइंड आउट विद दिस स्टेप। ऊपर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या वैल्यूज आएंगी। We have 64.648 whole divided by 1296.958. These are the value we are going to get by calculations. एक चीज याद रखें, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो मैंने 100 प्लस 1000 माइनस 1494.93 डिवाइडेड बाय 14 किया है, तो ये सिर्फ मेच्योरिटी वैल्यू माइनस वैल्यू फॉर बॉन्ड को डिवाइडेड बाय n करना है। INT को डिवाइड बाय n नहीं करना, INT अलग है, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस VB ओवर 4 n, फिर होल डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू मेच्योरिटी वैल्यू प्लस 0.6 इंटू वैल्यू फॉर बॉन्ड है। नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग, व्हाट वी गेट इज 0.0498, which is if multiplied by 100 that would be 4.98% हमारे पास आंसर है। Now this 4.98% क्या है, हमने इंटरपोलेशन किया, 4.98 हमें आंसर देता है नियरेस्ट वैल्यू ऑफ YTM कि इससे नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी। Now let's look at another step, that is step 4. स्टेप 4 इज हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसका मैं आपको बता रही थी कि नॉर्मली आपकी YTM जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड पे होती है कि पहले आप उसको 4% डालो, फिर 3% डालो, फिर 2%, 100%, जब तक कि YTM जो है वो वैसी परसेंटेज पे पहुंच जाए कि वैल्यू फॉर बॉन्ड आपकी जो गिवन है वो आ जाए। तो हिट एंड ट्रायल में आप क्या करते हो, द फर्स्ट थिंग, अब देखिए हमारा आंसर क्या है, नियरेस्ट आंसर क्या है YTM का, अप्रोक्सीमेट, this approximate YTM is equal to 4.98%। अब हम क्या करेंगे कि इसका मतलब है कि हमारा आंसर कहीं 5 होगा या 4 होगा, या 4 और 5 होगा, या 4 और 5 के दरमियान में कहीं हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं कि लेट्स लुक एट दिस थिंग, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड एट 4%। तो पहले हम उसी फॉर्मूला में जो हमने स्टेप 2 में फॉर्मूला यूज किया था, उस फॉर्मूला में हम YTM की जगह 4% डालते हैं। तो वैल्यू फॉर बॉन्ड वी नो इज 1949.93 इज इक्वल्स टू INT की वैल्यू इज 100 इंटू 1 माइनस 1.04, YTM की जगह हम 4% डाल रहे हैं, पावर माइनस 14 होल ओवर 0.04 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू वी नो इज 1000 इंटू 1.04 power minus 14. The answer we'll get is 1056.312, इसका आंसर आ जाएगा, प्लस 57.435. So the answer we get from the calculation is 1637.487, or 787, you can say 787, sorry. It's 787. So 1637.787 rupees is the answer for value for bond at 4%. That means अगर YTM की वैल्यू 4% डाली जाए तो आपकी वैल्यू फॉर बॉन्ड क्या आएगी, इसमें YTM is equals to 4. Now
लेट्स लुक एट द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड एट 5%. क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड कितनी आई है? 4.98%. दैट मीन्स या 4 होगा या 5 होगा या इनके दरमियान में आपकी वैल्यू कहीं एग्जिस्ट करती होगी. तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है तो इसके करीब करीब कहीं आपकी ओरिजिनल YTM की वैल्यू होती है. आपको ज्यादा सारी परसेंटेजेस नहीं डालनी पड़ती, आप सिर्फ नियरेस्ट परसेंटेजेस डाल के वैल्यू फाइंड आउट करते हो. सो वेयर वैल्यू एट 5% मीन्स YTM is equals to 5%. That means 1494.93 is equals to 100 into 1 minus 1.05. अब हमने YTM उसी फॉर्मूला में, जो हमने स्टेप 2 में फॉर्मूला यूज किया था, उस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यू YTM की जगह 5% डाल देंगे. तो 0.05 प्लस 1000 into 1.05 power minus 14. The answer we are going to get is 989.864 plus 505.068. If we calculate, the answer is 1494.27, or it's approximately equal to that. So it would be 1494.932. ये आपका आंसर है. विच इज द वैल्यू फॉर बॉन्ड. तो दैट मीन्स कि हमें क्या वैल्यू फॉर बॉन्ड चाहिए. हमारे क्वेश्चन में वैल्यू फॉर बॉन्ड कितनी दी हुई है? 1493.94.93. ये वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि जी इतनी वैल्यू फॉर बॉन्ड चाहिए. अब ये देखना है कि इसकी YTM की क्या वैल्यू होगी, तो वो परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है. तो जब हम अगर 4% डालते हैं, हमारे पास आंसर आता है 1637.787. और जब हम 5% डालते हैं तो हमारे पास वैल्यू फॉर बॉन्ड आ गई. दैट मीन्स हमारा जो YTM है, दैट इज YTM is 5%. तो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. तो YTM अगर 5% हो तो आपकी वैल्यू फॉर बॉन्ड एग्जैक्टली 1494.93 आ जाता है. ये स्टेप था कि अगर 4% डाला, 5% हमने डाला, भाई लक वॉज गुड कि जी हमारा आंसर एग्जैक्ट आ गया. लेट्स सपोज अगर आंसर एग्जैक्ट नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं? हम देखते ही हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 5. फिर हम स्टेप 5 पे जाते हैं. यहां तक आंसर आ गया, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. अगर यहाँ पे आंसर नहीं आता तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Step 5 is finding YTM. फाइंडिंग YTM में क्या करेंगे हम लोग? दो चीजें. हमने दो परसेंटेजेस कंसिडर की थी. द फर्स्ट वन वाज 4% एंड अदर परसेंट वाज 5%. ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिखा जी वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड. हमारी ओरिजिनल गिवन वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड कितनी थी? 1494.93. 4% पे हमारा आंसर आया था 1637 पॉइंट समवेयर 787 और 987 कुछ इस तरह. और 5% पे एग्जैक्ट हमारा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड आ गया. ये तो हमारा आंसर आ गया. ना लेट्स सपोज हमारा ऐसा आंसर नहीं आता, हमारा 5% पे सपोज कर लेते हैं. 5% पे हमारा आंसर कहीं आ जाता है 1397.99. ये हमारा सपोज करते हैं कि 5% में सपोज किया कि ये आंसर आया. इन दैट केस दिस स्लाइड इज this is for just for understanding, not the part of the question, जो लास्ट क्वेश्चन, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे. नाउ 5% पे अगर हमारी सपोज करते हैं कि हमारी ये वैल्यू आई है, तो व्हाट वी डू इज, इसका नेक्स्ट स्टेप इज 4% प्लस A ओवर B. बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारी 4 और 5% पे वैल्यू फॉर बॉन्ड क्या आई थी. लेट्स लुक एट दिस थिंग. 4% के ऊपर हमारी वैल्यू फॉर बॉन्ड आई है 1637.789 और 5% पे हमारी वैल्यू फॉर बॉन्ड आई 1397.9, जो कि हमने सपोज किए. वैसे हमारे आंसर आ गए, लेकिन हमने सपोज किया. जो हमारी ओरिजिनल गिवन वैल्यू फॉर बॉन्ड होती है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है, दैट इज 1494.93 आपका आंसर है. ये वैल्यू फॉर बॉन्ड है, तो आप 4% और 5% पे वैल्यू फाइंड आउट करते हो कि 4 पे कितना होगा, 5 पे कितना होगा. 4 पे हमने फाइंड आउट किया, दैट्स 1637.787 और 5% पे फाइंड आउट किया तो दैट्स 1397.99. अब अगर आप ये देखें कि हमारी
ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स 1637 और 1397 के दरमियान में क्या 1494 आता है? हाँ, अगर हम 1 2 हम अगर कहें एक की वैल्यू 1 है और एक 4 है तो क्या 3 104 के दरमियान में आता है? 3 104 के दरमियान में आता है। तो इसी तरह इधर भी हमने यही कंसिडर करना है कि 1600 और 1300 के दरमियान में क्या 1400 आता है? यस, 1300 और 1600 के दरमियान में 1400 आता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू देखें तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। 4% प्लस ए ओवर बी, जो आपकी जो फर्स्ट परसेंटेज आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये जो हमने 4% कंसिडर किया, दिस 4% इज द वैल्यू जो कि आप कंसिडर करोगे अपने परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। तो 4% प्लस ए ओवर बी, अब ए की वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू इज ए एंड दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू इज बी. So we have 1637.787 minus 1494.93 whole over 1637.787 minus 1397.99. अगर हम इस तरह वैल्यूज फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये आपकी वैल्यू, अब 4%, अब इनकी सपोज कर लेते हैं कोई भी आंसर आया 4% ओवर 0.5 आ गया, 0.58 ओवर 0.68 आ गया, आपका 4% प्लस 0.05 आ गया, 4% प्लस 0.05 दैट वुड बी 4.05%. तो ये आपका ओरिजिनल YTM की वैल्यू होगी एंड ऑल द वैल्यूज आर सपोज्ड 1. अगर आपकी लेट्स सपोज इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज स्टेप 6. स्टेप 6 इज रीचेक. आप जो सेकेंड स्टेप में आपने फॉर्मूला डाला है उसमें आपके जो ओरिजिनल YTM आई होती है उसको दोबारा डाल के आप लोग फाइंड आउट करते हो कि ओरिजिनल YTM की वैल्यू क्या. आगे हम YTC करेंगे तो सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं, यू विल नो कि किस तरीके से होता है. अगर हम 4% पे हमने वैल्यू फाइंड आउट की, हमारा आंसर नहीं आया, 5% भी की, हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म. लेट्स सपोज अगर हमारा आंसर नहीं आता, हम लेट्स सपोज करते हैं कि 4% पे 1637.78 आया और 5% पे 1397.99 आया. अगर ये वैल्यू आई है तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारे जो ओरिजिनल वैल्यू फॉर बॉन्ड है 16 और 13 के दरमियान में क्या 14 आता है? यस आता है. तो नेक्स्ट स्टेप इज जो फर्स्ट परसेंटेज है 4% उसको कंसिडर करेंगे, जो सबसे लीस्ट आपने परसेंटेज कंसिडर की होती है उसको कंसिडर करेंगे, प्लस ए ओवर बी. तो आप प्लस 4% प्लस ए ओवर बी किया, 4% प्लस आपकी ए की वैल्यू क्या है? 4% पे जो वैल्यू आई है उसमें से ओरिजिनल वैल्यू फॉर बॉन्ड माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी. 4% पे जो वैल्यू आई है उसमें से 5% की वैल्यू माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी. देन यू कैलकुलेट एंड यू हैव द आंसर ऑफ YTM. ये YTM की वैल्यू हम डालते हैं फॉर्मूला जो कि सेकंड स्टेप में यूज किया था YTM का, उसमें डालते हैं, रीचेक करते हैं कि क्या वाकई इस ये जो YTM का आंसर आया कि वाकई ये YTM का आंसर हमें एग्जैक्ट वैल्यू फॉर बॉन्ड देता है या नहीं देता, वरना आपको दोबारा स्टेप्स करने पड़ते हैं. ना एक चीज जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं दैट इज 4% और 5% पे हमने कह दिया जी 1600 1300 इनके बीच में 1400 आता है. लेट्स सपोज 4% पे 1600 आंसर आता और 5% पे हमारा आंसर आ जाता 1500 और हमारी ओरिजिनल वैल्यू फॉर बॉन्ड 1400 थी. तो 4% पे 1600, 5% पे 1500 और हमारी ओरिजिनल 1400. 15 और 16 के दरमियान में 14 नहीं आता, वो तो 15 से पहले आता है. दैट मीन्स कि यहाँ पे आंसर नहीं आता तो हम 4% 5%, फिर हम 6% को कंसिडर करते हैं कि 6% पे क्या वैल्यू आती है और फिर हम उसमें ए ओवर बी वाला फॉर्मूला यूज करते हुए 5 प्लस ए ओवर बी करेंगे. तो लेट्स सी के 4% पे आपका 1600 आया, 5% पे आपका 1500 आया, वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड बीच में एग्जिस्ट नहीं करती. आप नेक्स्ट परसेंटेज पे जाते हो, 6% फाइंड आउट करते हो, 6% पे आपकी वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड लेट्स से 13 आ जाती है, 1300 आ जाती है. अब 13 और 5% पे कितनी आई थी? 1500. 13 और 15 के दरमियान में 1400 एग्जिस्ट करता है. तो आप क्या करोगे कि नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे, 5% प्लस ए ओवर बी करोगे. उस वक्त 4 नहीं कंसिडर करोगे, उस वक्त उस वैल्यू फॉर बॉन्ड के साथ जो लीस्ट परसेंटेज है उसको कंसिडर करके 5 प्लस ए ओवर बी करोगे. और फाइल लेट्स सपोज इधर भी आंसर नहीं आता तो आप 3% पे जाओगे. एक चीज याद रखेंगे, जिस तरह हम परसेंटेज इंक्रीज करते जाते हैं आपकी वैल्यू फॉर बॉन्ड डिक्रीज होती जाती है. आपके 4% पे 1600 था, 5% पे 1500 था, 6% पे 1300 आ गई वैल्यू. तो जितनी ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज करो वैल्यू फॉर बॉन्ड डिक्रीज होती जाती है और इन बिटवीन कहीं एग्जिस्ट करती है. So that was your YTM and the answer of YTM is 5%. That means कि आपका exact answer आ गया था. Let's suppose अगर आंसर नहीं है तो you look at the following next steps to find out the value of a bond with YTM.
Now let's look at yield to call. That means if you are going to invest in bonds and you are going to hold those bonds till call, the return or the rate of return or the percentage return or the yield you are going to have is called YTC. That is yield to call. Let's look at the formula of yield to call. That is VB is equals to INT into 1 minus 1 plus YTC whole power minus n whole over YTC plus call price into 1 plus YTC power minus n. Now बहुत important है कि इस फॉर्मूला में दो तीन चीजें कंसिडर की जाए. The first thing is this is your value or the price of a bond जो हमें पता है. This INT is your interest payment. Interest payment is your par value into coupon interest rate. This YTM is your yield to call. This CP, अब देखें उस फॉर्मूला में जो ओरिजिनल हम फॉर्मूला यूज करते रहे या YTM में तो हम तक अभी तक मेच्योरिटी वैल्यू यूज करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉल प्राइस दैट मींस आपको कॉल प्राइस मिलनी है. आप जब यील्ड टू कॉल फाइंड आउट करोगे तो वो जो कॉल प्राइस है उसको हम कंसीडर उसको YTM की वो मेच्योरिटी वैल्यू की जगह यूज कर लेते हैं. एंड दिस CP इज योर कॉल प्राइस. ये एन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि YTM में हम नंबर ऑफ ईयर्स टिल मेच्योरिटी कंसीडर करते हैं और YTC में हम नंबर ऑफ ईयर्स टिल कॉल, number of years till bonds are called. Step इसके भी same है. Step 1 is INT. Step 2 is formula you are going to use. Step 3 is interpolation. Similar तरीका होगा जैसे कि हमने पहले find out किया the shortcut method. The step 4 is hit and trial method. Step 5 is finding YTM, or in case of YTC it would be finding YTC. And step 6 is the recheck. इसमें पूरे स्टेप्स एक ही क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट करेंगे एंड यू विल हैव एन आइडिया कि किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है फॉर क्वेश्चन. Now let's look at the question of YTC. That is, company issued a bond with a par value of rupees 1000. That means 1000 par value के साथ bond ने कंपनी ने bond issue किया है at a coupon interest rate of 10%. That means हमारा coupon interest rate 10% है for 14 years. That means 14 years इसकी maturity value है and are callable after 10 years at a call price of rupees 1100. That means कि कंपनी ने call की है bonds after 14 years उसकी maturity है. 10 साल बाद वो bonds call कर लेगा at a call price of 1100. If the value for bond is rupees 1494.93, find the value yield to be earned by the investor on the bond if held till called. तो अगर आपने आपकी वैल्यू फॉर बॉन्ड जो हमने जैसे पिछला क्वेश्चन की उसमें स्लाइड से चेंज है, अगर वैल्यू फॉर बॉन्ड है 1494.93 तो आपकी यील्ड टू कॉल क्या होगी. अगर बॉन्ड टिल कॉल रखे जाए तो उसके ऊपर यील्ड या रिटर्न क्या आएगा. द फर्स्ट स्टेप इज द फर्स्ट थिंग वी नो हमने क्या करना है इज वी हैव टू फाइंड आउट द डाटा. The data is the par value is equals to 1000, coupon interest rate is 14%, maturity date जो है वो 14 years है. Bonds are callable, that means के after 10 years, that means number of years, क्योंकि हम YTC के अंदर वो number of years consider करते हैं जो कि bonds हल किए जाए टिल कॉल. तो नंबर ऑफ इयर्स टिल कॉल तो n इज इक्वल्स टू 10 years हो जाएगा, नॉट 14 years क्योंकि 14 तो उसकी ओरिजिनल मेच्योरिटी डेट है. और आपकी कॉल प्राइस क्या है, दैट इज 1100. सो हमें वैल्यू फॉर बॉन्ड भी गिवन है, दैट इज 1494.93 एंड द वैल्यू व्हाट वी हैव टू फाइंड इज YTC. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप 1. व्हाट इज आवर स्टेप 1? स्टेप 1 क्या है जी, INT. INT is equals to par value into coupon interest rate
that means it is 1000 into 10%. That will be rupees 100. When we talk about step 2, that is the formula. Formula for YTC is VB is equals to INT into 1 minus 1 plus YTC power minus n whole over YTC plus call price into 1 plus YTC whole power minus n. Now let's put in the values के जो values हमें डाटा में हैं वो देखते हैं. 1494.93 is equals to INT हमारा आया है 100 into 1 minus 1 plus YTC की वैल्यू हमें नहीं पता, हमने फाइंड आउट करनी है. और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने हैं 10, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कौन से हैं, नंबर ऑफ ईयर्स टिल कॉल्ड, प्लस कॉल प्राइस हमें गिवन है दैट इज 1100 into 1 plus YTC power minus 10. This is your step 2. Let's look at step 3, that is interpolation. Step 3 is interpolation, that means INT formula जो है, अब वही सेम शॉर्टकट का जो इंटरपोलेशन के अंदर हमने YTM में यूज किया था, सिमिलर फॉर्मूला विद स्लाइट चेंज. जब भी हम YTC यूज करेंगे तो दो चीजों में चेंज आएगा. आपकी मेच्योरिटी वैल्यू चेंज हो जाएगी कॉल प्राइस में, आपके नंबर ऑफ ईयर्स टिल मेच्योरिटी चेंज होंगे जाएंगे नंबर ऑफ ईयर्स टिल कॉल. तो INT प्लस मेच्योरिटी वैल्यू था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा INT प्लस कॉल प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ बॉन्ड होल ओवर n. और ये जो n होगा वो कौन से ईयर्स होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स टिल कॉल. 0.4 into कॉल प्राइस प्लस 0.6 इंटू वैल्यू फॉर बॉन्ड. ये आपका फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला इंटरपोलेशन फॉर फाइंडिंग आउट YTC, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ YTC. वैल्यूज पुट करें 100 प्लस कॉल प्राइस इज 1100 माइनस वैल्यू फॉर बॉन्ड इज 1494.93 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स टिल कॉल दैट इज 10 होल ओवर 0.4 इंटू 1100 plus 0.6 into 1494.93. So with calculation the answer would be 60.507 whole divided by 1336.958. If we calculate, the answer would be 0.0452 into 100, that would be 4.52%. And what it is, this is your approximate YTC. Approximate YTC की वैल्यू हमारे पास आ गई है विद इंटरपोलेशन. अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट परसेंटेज ट्राई करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से. द फर्स्ट थिंग इज 4.52% इज योर आंसर. 4.52 का मतलब ये है कि आप 4% पे ट्राई करोगे और 5 या 4 या 5 होगा, या इन दोनों के बीच में होगा, या इसके अगर वैल्यूज नहीं आती तो इसके अलावा हम कोई परसेंटेज कंसिडर करते हैं. सो लेट्स लुक एट YTC का नेक्स्ट स्टेप करते हैं, दैट इज स्टेप 4 हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल में हमने वैल्यू ऑफ बॉन्ड देखे. हमारी ओरिजिनल YTC अप्रोक्सीमेट YTC कितनी आई थी, अप्रोक्सीमेट YTC इज इक्वल्स टू 0.0452 और 4.52%. तो हम क्या करेंगे, 4% और 5% में ट्राई करेंगे. वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट 4%, that means we are considering YTC is equals to 4%, and using the same formula as we used in our second step. तो second step में वो YTC की जगह 4% डालो और वैल्यू फाइंड आउट करो. तो that means 100 1 minus 1.04 पावर माइनस 10, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स आपके टिल कॉल्ड है, 0.04 plus 1100, that is your call price, into 1.04 power minus 10. The answer would be 811.089 plus 743.120, and the answer is 1554.209. That is the value for bond with YTC is equals to 4%. Now value for bond at 5% try करते हैं. That means YTC is equals to
5%, हमें पता चला वैल्यू ऑफ बॉन्ड 1554 है, हमें कितनी चाहिए 1494, नहीं आया तो नेक्स्ट परसेंटेज दैट इज 5%। तो 5% पे वैल्यूज पुट करें तो 100 1 माइनस 1.05 पावर माइनस 10 होल ओवर 1.05 प्लस 1100 1.05 power minus 10. The answer would be 772.173 plus 675.304. The answer would be 1447.47 rupees. So value for bond at 4% अगर हम देखें तो value for bond at 4% is 1554.209 and in case of value for bond at 5% that means YTC अगर 5% डाला जाए formula में the answer would be 1447.47. Let's look at the another question another step क्योंकि देखिए 4 और 5%, अब हम इसको बना के देखते हैं कि क्या वाकई हमारा ये स्टेप ठीक है परसेंटेजेस या हमें कोई और परसेंटेज फाइंड आउट करने की जरूरत है। स्टेप 5 इज फाइंडिंग YTM and YTC in case of YTC. So हमने इनको हमारे पास 4% था, 4% में कितनी वैल्यू है 1554.209 एंड इन केस ऑफ 5% हमारे पास आंसर आया है 1447.47। ओरिजिनल वैल्यू फॉर बॉन्ड जो हमें चाहिए वैल्यू फॉर बॉन्ड वो कितनी है 1494.93। अब हमें ये देखना है कि क्या 4% पे जो वैल्यू फॉर बॉन्ड आई है और जो 5% पे वैल्यू क्या इन दोनों के दरमियान में ओरिजिनल वैल्यू फॉर बॉन्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो 4% पे क्या है 1554 दैट मींस के 1500 अराउंड अबाउट 1500 और 5% पे हमारा आंसर कितना है 1447 अराउंड अबाउट 1400। तो 1447 है और 1554 है दैट मींस 1554 और 1447 के बीच है। 1447 के बाद 1450 आएगा 60 70 80 90 1490 आएगा और फिर उसके आगे 1500 शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब 1447 और 1554 के दरमियान में 1494.93 एग्जिस्ट करता है व्हेन यू स्टार्ट विद द काउंटिंग फ्रॉम 1 टू 1500। तो जाहिर बात है इन दोनों चीजों के दरमियान में ये वैल्यू आएगी। सो वी हैव 4% प्लस A ओवर B। अब जो भी ये फर्स्ट परसेंटेज होगी हमारे पास हमने वो कंसीडर करनी। सपोज अगर कोई भी क्वेश्चन होता और उस क्वेश्चन में यहाँ पे 12% यहाँ पे 13% होता और वैल्यू फॉर बॉन्ड हमारी होती 1100 या 1200, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी कोई वैल्यू आई होती और यहाँ पे भी कोई वैल्यू आई होती, तब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं 12% प्लस A ओवर B, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 5% है तो इसलिए 4% प्लस A ओवर B करते हैं। तो 4% प्लस A is 15 this minus this is A and this minus this is B. So 1554.209 minus 1494.93 whole over 1554.209 minus 1447.47. The answer would be 59.279 whole over 106.739. The answer is 4.55% which is equal to your YTC. This is your exact YTC. So 4.55% आपका 55% आपका exact YTC का आंसर है 4 और 5% पे hit and trial करने के बाद। तो YTC is 4.55%. Let's look at the last step, that is step number 6, that is finding out that whether this YTC, the value of YTC we have found out is exactly the right one or not. So step 6 is to recheck. तो recheck करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल वैल्यू फॉर बॉन्ड का फॉर्मूला जो हमने सबसे इसी क्वेश्चन के सेकंड स्टेप में यूज किया था, हर क्वेश्चन चाहे YTM YTC उसके सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें पता चलेगा हमें वो फॉर्मूला यूज करना है। तो वो फॉर्मूले के मुताबिक द फॉर्मूला इज VB is equals to INT into 1 minus 1 plus YTC whole power minus n whole over YTC plus call price 1 plus YTC power minus n. Putting in the values 100 1 minus 1 point, अब YTC की हम वैल्यू डाल रहे हैं जो हमने वहां पे फाइंड आउट की है। सो YTC is equals to 4.55% जो भी हमने लास्ट स्टेप में फाइंड आउट किया, दैट इज
1.0455 power minus 10 whole over 0.0455 plus call price is 1100 into 1.0455 power minus 10. If you find out, the value would be 789.330 plus 704.940. The answer would be 1494.27 approximately इतना आंसर आता है. तो ये जो आपका 27 आंसर, ये दिस विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इतना. अगर पॉइंट्स के बाद कोई चेंज हो दैट्स इक्वल, क्योंकि हम दैट्स ओके, क्योंकि हम परसेंटेज जब भी कंसीडर करते, जब भी पॉइंट्स में आंसर कंसीडर करते हैं तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू जो है वो नॉर्मली कोई इशू नहीं करती, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लेते हैं. पॉइंट के बाद ज्यादा हमने 3 वैल्यू लेनी होती है. अगर लेट्स सपोज आपके वैल्यू पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज में चेंज आ दैट्स ओके, इतना एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि हम मैन्युअली करते हैं. लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग इन ऑन स्प्रेडशीट, एक्सेल या आपके फाइनेंशियल कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर एग्जैक्टली यही आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारा जो आंसर है दैट इज द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, जो हमारी ओरिजिनल गिवन वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड है. दैट मीन्स कि हमारा जो हमने फाइंड आउट किया 4%, 5% एंड देन YTC दैट इज 4.55%, एग्जैक्टली रीचेक करने के बाद हमें आंसर देता है 1494. That is equal to the value of a bond. That was about yield to call. Then now let's look at this thing, how bond yield with semi-annual compounding में क्या चेंज आता है. सिंपल फॉर्मूलाज में ही चेंज आएगा, सेम स्टेप्स रहेंगे, किसी स्टेप में कोई चेंज नहीं आएगा, यही स्टेप फॉलो किए जाएंगे. सिर्फ आपके फॉर्मूला में चेंज आएगा, एक फॉर्मूला में दैट इज द वैल्यू फॉर बॉन्ड के फॉर्मूला में, और फिर वो वैल्यू फॉर बॉन्ड का फॉर्मूला आप चाहे स्टेप 4 में यूज करें, स्टेप रीचेक में चेक करें, या कहीं पे भी, या स्टेप 2 में जो फॉर्मूला स्टेप 2 में लिखेंगे वही फॉर्मूला आपने स्टेप 4 एंड स्टेप 6 में यूज करना है. तो और पूरे प्रोसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपका ओरिजिनल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. दैट इज 1 माइनस 1 प्लस YTM डिवाइडेड बाय 2 होल पावर माइनस 2n होल ओवर YTM डिवाइडेड बाय 2 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू इंटू 1 प्लस YTM डिवाइडेड बाय 2 होल पावर माइनस 2n. सिर्फ इस फॉर्मूला में चेंज आएगा. जो भी जब भी आप YTM फाइंड आउट करोगे, ये फॉर्मूला लिखना है फॉर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग. क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा. इस फॉर्मूला को आप चेंज करोगे किस तरीके से, इसमें वैल्यूज पुट इन करके स्टेप 4 में भी यही फॉर्मूला यूज होगा और लास्ट स्टेप में भी ये फॉर्मूला यूज होगा. फॉर्मूला सिर्फ यूज होगा, इसके अलावा इंटरपोलेशन की फॉर्मूला में या वो जो 4 + A ओवर B वाले स्टेप्स कहते हैं, किसी में कोई चेंज नहीं आएगा. एग्जैक्टली वैसा रहेगा जैसा मैंने आपको करवाया है, सिर्फ आपका ये वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे होगे. देन इन केस ऑफ YTC इट्स INT डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस YTC डिवाइडेड बाय 2 power minus 2n whole over YTC divided by 2 plus call price into 1 plus YTC divided by 2 whole power minus 2n. This is the formula for bonds with semi-annual compounding for YTC and YTM. Now the last thing is your current yield with YTM YTC. हमारी एक और तरीका है करंट yield करने का. करंट yield बहुत रेयरली फाइंड आउट होता है और वो सिर्फ तब यूज होता है व्हेन यू एग्जैक्टली नीड, मतलब बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किए एंड यू वांट टू नो कितना yield रिटर्न आएगा. एग्जैक्ट नहीं आंसर देता ये, फर्स्ट थिंग ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देता और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली या अंदाजन कितनी वैल्यू आएगी इसके अंदर. सो द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट इट इज द करंट yield इज फाइंड आउट बाय विद the annual interest payment divided by the bond's current price is the current yield. So it provides the information about the cash income gained by the bond को कितनी cash income मिल रही होगी वो percentage आपको बताता है, but it doesn't provide the information about the actual total expected rate. क्या actual expected rate आपका क्या होना चाहिए वो नहीं बताता, approximate answers बता देते हैं, and most of the time current yield आपका कम ही use होता है. The formula for current yield is payment, जो कि आपकी INT की वैल्यू होती है, इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड. सो दैट वुड बी INT होल ओवर VB. दिस इज योर करंट शीट. Let's look at a question for current yield. A 1000 10% coupon bonds were currently selling at rupees 985. Their current yield would be, क्या उनकी current yield होगी, क्या है हमारी par value कितनी है
1000, this is your par value. 10% coupon bonds, that means 10% उनका coupon interest rate है. This will be CR and the current price we know that value for bond is this. तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हमें INT find out करना है, that is par value into coupon interest rate. ये हमारा step 1 हो जाएगा. हर कभी भी कोई भी bond valuation का formula करेंगे, step 1 is finding INT, interest payment. Present value is 1000 into 10%, that will be 100. Okay, putting in the value of formula of current yield is equals to INT whole divided by value for bond. INT is 100, value for bond हमें पता है question में दी हुई है 985. The answer would be, इसको multiply by 100 भी करना है. So the answer would be 10.15%. ये आपकी current yield की value हो जाएगी कि जी अगर इतना coupon interest rate हो, वैल्यू फॉर बॉन्ड इतनी हो, 1000 पार वैल्यू हो, तो आपका कूपन इंटरेस्ट रेट अप्रोक्सीमेटली अराउंड आपका जो यील्ड मिलती है करंट यील्ड की फॉरन ऑन द बेसिस टुडे आज क्या यील्ड मिल रही है, दैट इज 10.15%. सो दैट वाज ऑल अबाउट योर बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर जो कि खत्म हो गया है. एंड लेट्स हैव अ ब्रीफ समरी ऑफ दिस कि व्हाट इज अ बॉन्ड. आपका बॉन्ड इज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और डेट इंस्ट्रूमेंट that where the borrower agrees to make interest payments to your bond holder. और आप इसको डेट इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहते हो क्योंकि आपकी जो कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर डेट फाइनेंसिंग कर रही होती है जिसके अंदर वो आपके बॉन्ड्स को कंसिडर करती है और इसकी जो रिटर्न होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स के फॉर्म में होता है. इसके बाद हमने ये देखा था कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखी थी, ट्रेजरी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड एंड your municipal bonds. For details please refer to my last lecture and the overview of this lecture as well. Then we found out that there are different ratings for the bonds. उनकी different companies हैं जिसमें investment grade bonds होते हैं, आपके speculative और junk bonds होते हैं और bonds in default भी होते हैं. Then we found out the different legal aspects of the bonds जिसमें indenture होता है, the document जो कि bond के साथ आता है, and we have a trustee who found out that आपके exactly अगर आपके indenture के जो rules and regulations है क्या वो follow हो रहे हैं कि नहीं. फिर हमने ये देखा था कि इसमें बॉन्ड वैल्यूएशन किस तरीके से होती है, वैल्यू फॉर बॉन्ड फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, सेमी एनुअल बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे होती है, डिफरेंट यील्ड हमने फाइंड आउट की थी कि लेट्स सपोज इफ वी इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज रिटर्न. रिटर्न किस फॉर्म में आता है, सो द रेट ऑफ रिटर्न या परसेंटेज रिटर्न इन केस ऑफ बॉन्ड्स और द इन्वेस्टमेंट ऑफ बॉन्ड जो है वो इन फॉर्म ऑफ यील्ड आता है और उसको हम बॉन्ड यील्ड कह देते हैं. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड यील्ड. द फर्स्ट वन इज यील्ड टू मैच्योरिटी, दैट इज द रिटर्न यू अर्न इफ यू हेल्ड द बॉन्ड्स टिल मैच्योरिटी, एंड द रिटर्न यू अर्न if the bonds are held till call is your YTC, yield to call. Then we found out semi-annual compounding for YTM and YTC, and then the current yield. That current yield is your information about the yield or the return the bond is going to earn today. आज currently क्या उसकी वैल्यू होगी. YTM और YTC के 6 different steps हैं जिसके अंदर finding out from INT, then using the formula, and then moving on to interpolation, that is the shortcut formula, then using hit and trial, then finding out the original value of YTM with A over B, and then the last step is to recheck your formula whether the value of YTM or YTC that has been calculated is exactly the right one or not. Well, that was all about your bond valuation chapter. In the next lecture we will be starting share valuation. Thank you.